Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 5 negative sentences of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topics were change positive sentences into their negative form, and our next topic was difference between positive and negative sentences. So students, included these topics, we have read and solved exercise 8 changes positive sentences into their negative form, which is page number 18 in our Far English Language notebook in our last video. And students, we have also read difference between positive and negative sentences in our last video. And since today's our topics are, our first topic is change negative sentences into their positive form, and since our next topic is imperative sentences. Okay, so students, today we will read and solve exercise B, which is page number 18 in our Far English Language notebook, and after students we will read about imperative sentences, which is page number 19. Okay, so all students, please partial attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to read and solve exercise B in our Far English Language notebook, and after students we will read about imperative sentences. So all students, look at the page number 18. Let's see this note. Cannot is always written as one word. Okay, cannot it means है, always means हमेशा या सदैव, written means लिखा जाता है, as means तरह या रूप में, one word means एक शब्द. ओके, cannot को हमेशा एक शब्द के रूप में लिखा जाता है या एक शब्द की तरह लिखा जाता है. तो can और not को हमेशा एक साथ हम लिखते हैं. ओके, separate words में नहीं write down करते. So students, now we are going to read and solve this exercise B in our Far English Language notebook. So all students, let's see this exercise B. Okay, your exercise B is change these negative sentences into their positive forms. Okay, change means बदलिए या परिवर्तित करिए, this means in, negative means नकारात्मक, sentences means वाक्यों, into means में, their positive forms it's mean उनके सकारात्मक रूपों में. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज भी इज चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू देयर पॉजिटिव फॉर्म्स. इट्स मीन कि इन नकारात्मक वाक्यों को उनके सकारात्मक रूपों में बदलिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेंटेंस इज Marik was not studying for the test. Okay, Marik was it's so past continuous tense helping when singular form, not means नहीं, studying means अध्ययन कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, for means के लिए, the test means टेस्ट या परीक्षा. ओके, फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेंटेंस इज मरिक वाज नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट. इट्स मीन मरिक परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं कर रहा था. ओके, सो स्टूडेंट, वी कैन चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंस इनटू इट्स पॉजिटिव फॉर्म बाय रिमूव नॉट एंड राइट डाउन दिस सेंटेंस एज इट इज. ओके, तो हम नॉट को रिमूव करके, नॉट को हटा के और इस सेंटेंस को एज इट इज राइट डाउन करके इसे पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिमूव नॉट and write on this sentence as it is. Okay, and then your positive form of its negative sentence become Marik was studying for the test. Okay, it's mean कि Marik परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था. Okay, let's see second number negative sentence. Students, our second number negative sentence is he will not listen to the teacher. He means वह. Okay, he will it's a future tense helping word, not means नहीं, listen means सुनना, listen to means सुनना, the teacher means शिक्षक या अध्यापक. Okay, students, our second number sentence is he will not listen to the teacher. It's mean कि वह शिक्षक की नहीं सुनेगा. Okay, so student, it's a negative sentence and we can change this negative sentence into its positive form by remove not. Okay, so students, remove not and write down this sentence as it is. Okay, and then your positive form of this sentence become he will listen to the teacher. Okay, it's mean कि वह शिक्षक की सुनेगा. Clear? So students, let's see third number negative sentence. Your third number negative sentence is we are not playing in the rain. We means हम, are it's a present continuous tense helping verb plural form, not means नहीं, playing means खेल रहे हैं, in means में, the rain means बारिश. Okay, we are not playing in the rain. It's mean कि हम बारिश में नहीं खेल रहे हैं. Okay, so students, we can change this negative sentence into its positive form by remove not. Okay, so students, remove not and write down this sentence as it is. Okay, and then your positive form of its sentence become we are playing in the rain. Okay, we means हम, are means है, playing means खेल रहे हैं, in means में, the rain means बारिश, हम बारिश में खेल रहे हैं. Clear? Let's see 4 number negative sentence. Students, of 4 number negative sentence is the farmer was not sowing the seeds in his field. Okay, the farmer means किसान, was it's so past continuous tense helping verb singular form. Okay, it's mean था, not means नहीं, sowing means बो रहा था, the seeds means बीजो, in means में, his means आपने, field means खेत. Okay, the farmer was not sowing the seeds in his field. It's mean कि किसान अपने खेत में बीजों को नहीं बो रहा था. Okay, किसान अपने खेत में बीज नहीं बो रहा था. Clear? So students, we can change this negative sentence into its a positive form by remove not. Okay, so students, remove not and write down this sentence as it is, and then your positive form of its negative sentence become the farmer was sowing the seeds in his field. Okay, the farmer means किसान, was means था, sowing means बो रहा था,
सीड्स मीन्स बीज, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, फील्ड मीन्स खेत. ओके, किसान अपने खेत में बीज बो रहा था. क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी 5 नंबर नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स ऑफ 5 number negative sentences. The birds were not singing loudly. The birds means चिड़िया, वर means थी. ओके, वर इट्स योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन प्लो फॉर्म. नॉट means नहीं. सिंगिंग means गा रही थी. लाउडली means जोर से. ओके, स्टूडेंट्स ऑफ 5 number sentences, your 5 number negative sentences, the birds were not singing loudly. It's mean कि चिड़िया जोर से नहीं गा रही थी. ओके, बर्ड्स मीन्स चिड़िया या पक्षी होता है. ओके, तो चिड़िया जोर से नहीं गा रही थी या पक्षी जोर से नहीं गा रहे थे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we can change this negative sentence into its positive form by remove word. Okay, by remove not. Okay, after verb, जो verb के बाद में जो not है ना, इस word को, not word को हम remove करके इसे positive to negative change कर सकते हैं. Okay, so students, remove not and write down this sentence as it is, and then your positive form of its negative sentence become the birds were singing loudly. Okay, the birds means चिड़िया, वर मीन्स थी, सिंगिंग मीन्स गा रही थी, लाउडली मीन्स जोर से. ओके, तो स्टूडेंट्स योर 5 number पॉजिटिव सेंटेंस बिकम द बर्ड्स वर सिंगिंग लाउडली. इट्स मीन कि चिड़िया जोर से गा रही थी. ओके, या पक्षी जोर से गा रहे थे. बर्ड्स मीन्स चिड़िया या पक्षी होते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट लेट्स से 6 number सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. ओके, स्टूडेंट्स ऑफ 6 number नेगेटिव सेंटेंसेस, यू शुड नॉट ओबे योर एल्डर्स. ओके, यू मीन्स आपको, यू शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, ओबे मीन्स मानना, योर मीन्स आप, अपने एल्डर्स मीन्स बड़ों के. ओके, ओबे मीन्स आज्ञा मानना. तो यू शुड नॉट ओबे योर एल्डर, इट्स मीन कि आपको अपने बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए, आपको अपने बड़ों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंस इनटू इट्स पॉजिटिव फॉर्म बाय रिमूव नॉट बाय आफ्टर शुड. ओके, तो शुड के आफ्टर, शुड के बाद में जो नॉट वर्ड है ना, इसको रिमूव करके हम इसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिमूव नॉट and write down this sentence as it is, and then your proper form of its negative sentence become you should obey your elders. Okay, इट्स मीन कि आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 5 and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any sentence of this exercise B. Okay, and we have learned from this exercise B that we can change negative sentences into their positive form by remove not. Okay, तो not को remove करके हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्यों को पॉजिटिव सेंटेंस से इट्स मीन सकारात्मक वाक्यों में बदल सकते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस. ओके, सॉल्यूशन, लुक एट पेज नंबर 19. ओके, लेट्स सी, लर्न मी, सीखिए. ओके, टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस वी आर डू नॉट बिफोर दिस सेंटेंस, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ओके, टू गेट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस. ओके, इट्स मीन कि आदेशात्मक वाक्यों के नकारात्मक रूप पाने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस मीन्स आदेशात्मक वाक्य. ओके, आदेशात्मक वाक्यों के नकारात्मक रूप पाने के लिए वी ऐड डू नॉट बिफोर द सेंटेंस. हम डू नॉट को सेंटेंस के बिफोर ऐड करते, वाक्य के पहले जोड़ते हैं. ओके, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ओके, लुक एट मीन्स देखिए, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित एग्जांपल्स में उदाहरण. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, इट्स मीन कि निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, इट्स अ कॉलम ऑफ योर पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस का कॉलम है, पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य, एंड इट्स अ सेकंड नंबर कॉलम, इट्स अ सेकंड नंबर कॉलम ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इट्स मीन नकारात्मक वाक्य. Okay, so let's see first number positive sentence. It's your first number positive sentence is come here. Come here, it's mean यहाँ आइए. Okay, and it's an imperative sentence. एक imperative sentence है because this sentence it's showing a command. एक command को show कर रहा है, आदेश करे ना कि come here, इधर आइए, है ना. So students, we can add do not before the sentence to change it in a negative form. Negative form में change करने के लिए हम इसके पहले do not को add कर सकते हैं. Okay, so students, do not come here, it's mean do not come here, it's mean यहाँ मत आइए, it's your negative sentence. Okay, ये आपका negative sentence है, नकारात्मक वाक्य ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. आदेशात्मक वाक्य का ये नकारात्मक रूप है. ओके, इट्स अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस. ये एक आदेशात्मक वाक्य का नकारात्मक रूप है. क्लियर? लेट्स सी सेकेंड नंबर पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. आदेशात्मक वाक्य का सकारात्मक वाक्य देखिए. ओके, प्ले इन द रेन, इट्स मीन प्ले इन द रेन, इट्स मीन कि बारिश में खेलिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस. एक इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, एंड स्टूडेंट्स वी कैन चेंज दिस इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इट्स नेगेटिव फॉर्म by add do not before this sentence. Okay, so students, add do not before this sentence, and then your negative form of its imperative sentence become do not play in the rain. It's mean कि बारिश में मत खेलिए. Clear?
तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, उनके पहले हम डू नॉट को ऐड करके उन्हें हम पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज करते हैं। क्लियर? लेट्स सी, वी कैन आल्सो यूज डोंट विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। ओके, फॉर एग्जांपल डोंट कम हियर। ओके, इट्स मीन कि हम वी कैन आल्सो यूज डोंट, हम डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू, जो डू का शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, डू का संक्षिप्त रूप होता है, डू नॉट का संक्षिप्त रूप होता है। ओके, तो हम डू नॉट की प्लेस पे डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो डोंट होता है ना, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू नॉट का संक्षिप्त रूप होता है। ओके, संक्षिप्त रूप तो होता है, इट मीन्स छोटा रूप होता है। ओके, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने रीड किया कि डू नॉट कम हियर, इट्स मीन इधर मत आइए। ओके, यहाँ मत आइए, तो स्टूडेंट डू नॉट के प्लेस पे हम डोंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, डोंट कम हियर, इट्स मीन यहाँ मत आइए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, समटाइम्स वी कैन आल्सो मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग नो। हियर आर सम एग्जांपल्स। ओके, तो कभी कभी हम नो का यूज़ करके, ना का यूज़ करके भी निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। ओके, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि समटाइम कभी कभी वी कैन आल्सो मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, हम नकारात्मक वाक्यों को बना सकते हैं यूजिंग नो, नो का प्रयोग करके भी। कभी कभी हम नो इट्स मीन ना का प्रयोग करके भी नकारात्मक वाक्यों को बना सकते हैं। ओके, हियर आर सम एग्जांपल, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। ओके, लेट्स सी दिस कॉलम। ओके, इट्स अ योर फर्स्ट नंबर कॉलम, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, एंड योर सेकंड नंबर कॉलम ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का कॉलम है। लेट्स सी फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेंटेंस, स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेंटेंस इज आई हैड अ पेट कैट। ओके, आई हैड अ पेट कैट, इट्स मीन कि मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी। ओके, एंड स्टूडेंट्स इट्स योर पॉजिटिव सेंटेंस, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। एंड स्टूडेंट्स वी कैन चेंज दिस पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इट्स नेगेटिव फॉर्म by drop a and add no after had. Okay, so students, then your negative form of this positive sentence become I had no pet cat, it's mean कि मेरे पास पालतू बिल्ली नहीं थी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, let's see second number positive sentence. Students, your second number positive sentence is Gayatri has a message for you. Okay, Gayatri has a message for you, it's mean कि गायत्री के पास आपके लिए एक संदेश है। Okay, so student, we can change this positive sentence into its a negative form by drop a and add no after has. Okay, and then your negative form of its a positive sentence become Gayatri has no message for you, it's mean कि गायत्री के पास आपके लिए संदेश नहीं है। Okay, गायत्री के पास आपके लिए संदेश नहीं है। Clear? Let's see third number positive sentence. Students, of third number positive sentence is I have some friends, it's mean मेरे कुछ दोस्त हैं। Okay, so student, we can change this positive sentence into its a negative form by drop some and add no after have. Okay, so students, then your negative form of its a positive sentence become I have no friends, it's mean मेरा कोई दोस्त नहीं है। Clear? For sentences that have the verbs has, have or had plus a, and or some, we drop a, and or some and add no after the verb to make them negative. For sentences, it means वाक्यों के लिए that have में जो रखते हैं, the verbs means क्रियाएं, has है both are your present perfect tense helping verb, we use has in singular form and we use have in plural form, और means अथवा had it's a past perfect tense helping verb, a and it's mean होता है एक, और means अथवा some means कुछ, we drop a and or some, हम a and या some को ड्रॉप कर देते, हटा देते, एंड ऐड नो आफ्टर द वर्ब, और जो मेरी वर्ब होती है हैज़, हैव या हैड, इनके आफ्टर में नो को ऐड कर देते, नहीं को जोड़ देते, टू मेक देम नेगेटिव, इन्हें नकारात्मक बदलने के लिए, इन्हें नकारात्मक रूप में बदलने के लिए, इन्हें नकारात्मक बनाने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में ए एंड या सम हो, तो हम क्या करते हैं, इन्हें नकारात्मक रूप में बदलने के लिए, इन्हें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए ए एंड या सम को ड्रॉप करते, इन्हें रिमूव कर देते, हटा देते ए एंड या सम को, और वर्ब के बाद में जो मेरी वर्ब होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो या पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो, हैज़, हैव या हैड हो, इनके बाद में हम नो को ऐड करके इन्हें नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड that how can we change imperative sentences into a negative form, and I hope you must have understood this topic, and I hope you have no problem for this second number topic, imperative sentences. Okay, so student, let's see exercise C. Your exercise C is one of the students can be made IT. Okay, तो छात्रों में से एक छात्र को IT बनाया जा सकता है। The teacher can divided the rest of the class into two groups. Okay, तो शिक्षक शेष कक्षा को दो समूह में विभाजित कर सकता है। The first group commands do something. Okay, तो जो पहला समूह वो आदेश देता है कुछ करने के लिए. The second group will respond with the negative of that command I read, and the second group will respond with the negative of that command. Okay, तो जो दूसरा समूह है वो नकारात्मक आदेश के साथ प्रतिक्रिया देगा. Okay, and roles can be reserved as well. तो जो roles है, भूमिकाएं आरक्षित भी की जा सकती है, रिजर्व भी की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ग्रुप फर्स्ट. ओके, समूह फर्स्ट बोलेगा स्टैंड ऑन द चेयर,
इट्स मीन कुर्सी पर खड़े हो जाइए. द स्टूडेंट हु इज IT विल ट्राई टू डू व्हाट ही इज डू. ओके, द स्टूडेंट हु इज IT विल ट्राई टू डू व्हाट ही इज टोल्ड. जो IT छात्र है, जो छात्र IT है, वह वही करने की कोशिश करेगा, वह वही वर्क करने की कोशिश करेगा जो उसे बताया गया है. क्लियर. ग्रुप सेकंड, डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर. इट्स मीन कुर्सी पर मत खड़े हुई. ग्रुप फर्स्ट, लीव द क्लास. इट मीन क्लास छोड़ दीजिए. ओके, एंड सो ऑन. इट्स मीन और इसी तरह. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज सी, इट्स लाइक अ एक्टिविटी, इट्स लाइक अ गेम. एक गेम की तरह, एक एक्टिविटी की तरह है. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन अवर क्लासरूम में इसे कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, ये पॉसिबल नहीं है. सो वी कांट solve this exercise in our classroom. Okay, so but students, you can solve this exercise in your house. या अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं. अपने साथ अपने ब्रदर या सिस्टर या किसी फ्रेंड को ले लीजिए. ओके, 2-2 का ग्रुप बना लीजिए या 1-1 ही सही है. ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपने 1 पर्सन को लिया, अपने ब्रदर या सिस्टर या अपने 1 फ्रेंड को ले लिया, तो आपका फ्रेंड आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलेगा. ओके, जैसे स्टैंड ऑन द चेयर, तो आप उसे बोलिए, सिंपल से आप वर्क करिए, ज़्यादा मत करिए, आप सिर्फ इतना बोलिए, उसे नेगेटिव में चेंज करिए. ओके, डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर. ओके, आपका फिर फ्रेंड है, जो भी अदर पर्सन है, आपका पार्टनर, वो बोलेगा लीव द क्लास, क्लास छोड़िए, तो आप बोलेंगे डू नॉट लीव द क्लास. ओके, फिर अदर पर्सन बोलेगा कि इट इज़ माई फेवरेट कलर, तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट माई फेवरेट कलर. ओके, तो वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेगा, आप उसे नेगेटिव में चेंज करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज सी. ओके, सो स्टूडेंट्स, today's your class work is that complete exercise B of this chapter 5 in your FAIR English language notebook. It's your today's class work. And students, your homework is that complete exercise C of this chapter 5. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your class work. Complete exercise B, change these negative sentences into their positive forms of this chapter 5 in your FAIR English language notebook and send me your work here. Thank you.